Welcome students, RPS Public School online classes. I have just today appeared this class, Standard 8, subject English grammar. Okay? So today we shall discuss about English grammar. Before starting English grammar and the subject, the chapter is voice. So before starting this, I have just a good news. I am just going to provide you that as you know, our Muzaffarpur is under the green zone, and due to this, according to central government orders, lockdown has been extended, but in some extent it has been facilitated by some facilities, and government has allowed a green zone, a very not very safe zone, but the government is going to be relaxed in terms of some field. So, but we have to maintain the social distances and use your mask as usually, no doubt. And just one news, very good news I am going to provide you. Today is 2nd of May and tomorrow is 3rd of May. It's a very glorious day. If you ask, what type of glorious day, sir? Please tell me, because I am very much fed up with knowing the knowledge, knowing the news about COVID-19. Whenever I switch on a television and mobiles, internet, I just go through the news. Coronavirus, so many times I am going to be here now. So that's a very, very excuse me. So what I tell you, so I'm just telling about a glorious day tomorrow, 3rd of May. What? Our Indian force is going to greet our corona warriors who is fighting against the corona disease, and they are going to help all the people who are suffering from coronavirus. And our Indian Air Force is going to salute those warriors who just contributed for our nation. Truly, he is a very, very devoted, and you say the patriotic person. And our Indian force decided to pay the gratitude those corona warriors like doctors, our workers, nurses, policemen, and even the sweepers. That all the people are comes under the saluting position, and to pay their gratitude, Indian force will run tomorrow from Kashmir to Kanyakumari and from Assam to Gujarat, and it will be a very glorious day. Why not? इतना ग्लोरियस क्यों नहीं होगा? उन्होंने हमारे नर्सेज जो है, डॉक्टर्स हैं, वर्कर्स हैं, जो साफ करने वाले हैं, स्वीपर्स हैं, नगर निगम के कर्मचारी हैं, जितने भी स्टाफ्स हैं, all are going to sacrifice their lives. Obviously, some doctors have been infected, but they are still working. Obviously, there are some nurses also infected, but they are still working.
they are the true soldiers of our country. Always. So, that glorious day, we shall also pay the gratitude as our Indian force is doing tomorrow. That is 3rd of May. Now come to the topic here. Voice. You see the voice. Whenever I ask you voice, just you think yourself, so what is voice first of all? Before starting any kind of subject or chapters, we shall go through the reality. What does it mean? Then we shall proceed. पहले वॉइस को पढ़ने के पहले वॉइस आखिर है क्या? वॉइस की चिड़िया का नाम है, इसको हम जानेंगे और ये भी जानेंगे what is the importance of voice. Voice has a lot of importance concerning this one. How this one? That even in spoken English, voice is very prevalent. Voice is very, very essential, not in a writing manner, but also in a spoken manner. That's a very, very essential part of us. So don't overlook this chapter because it is very important and it will be also beneficial in the coming classes also. Coming means your 9th standard, 10th standard up to plus level. So, just you know the importance of voice and go through this very, very minutely. I am going to explain one by one. Before starting this one, as you know, mainly subject, verb, object. 3 things are you very, very much familiar with in the previous classes? Obviously, I just told you earlier in the classes, whenever the offline was running there. So I do hope you are get familiar with the tense also, and in addition with modals, infinitive, because all are concerning with the voice. We shall proceed the others next classes after the classes it will come. So all will come in voices like your modals, tenses, imperatives, imperative sentences, all are going to be connected with this voice. How it will be? Later on this classes we shall discuss. But before starting, we should know the voice. What is voice? Voice शुरू करने के पहले, voice जो हम शुरू करेंगे चैप्टर को, उसमें हमारे टेंसेस भी आएंगे, modals का भी यूज आएगा, verb to be and infinitive का भी यूज होगा, imperative sentences के यूज होंगे, तो बहुत सारी चीज आएंगे हमारे सामने, इससे कंसर्निंग होंगे वॉइस से, उसको वन बाय वन हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, उसको अच्छी तरह से समझेंगे. और before starting this one, I would like also to say to you that you will write in your notebook also. After writing this, you pause them and you can write all the materials, whatever it is provided on the board. So first of all, voice. What is voice? In grammar, as you know the grammar, the voice of a verb. You see, I was just telling this one that you have gone through the 3 things mainly: subject, verb, and object. Obviously, what is subject? I just told you earlier classes. जो काम करता है, क्या करता है, कौन करता है? तो सब्जेक्ट करता है, वो सब्जेक्ट हो गया. क्या करता है? You just arise your question, you will get the answer, and that's a very, very best way to identify the subject. For example, I am just telling you, I eat a mango, isn't it? You just ask the questions yourself. कोई तुम आपसे क्वेश्चन पूछ भी नहीं जा रहा, आप खुद अपने से पूछिए. अच्छा भाई, कौन खाता है आम को? तो मैं खाता हूं. कौन का जैसे आंसर मिल गया मैं, तो मैं सब्जेक्ट हो गया. अब मैं क्या खाता हूं, मैं क्या करता हूं पहले. अब सब्जेक्ट जब हो गया तो आप ये पूछेंगे, ठीक है मैं तो सब्जेक्ट हो गया. अब मैं क्या करता हूं, तो मैं खाने का काम करता हूं. ये हमारा मेन वर्ब हो गया, खाने का काम करना.
ये वर्ब हो गया मेरा, और वर्ब में भी ये मेन वर्ब हो गया। अब इसमें एक सवाल फिलअप करेंगे, क्या करते हैं? खाते हैं तो क्या खाते हैं? तो मैंगो खाते हैं। ऑब्जेक्ट so if you arise your question, it is very simple way to identify what is where is subject, where is verb, where is object. Because before starting this, you must be very well skilled to identify which one is subject, which one is object, and which one is verb, main verb. So by knowing this one, you can just solve the questions, because after this one you will go, you will have to convert the passive active voice into passive voice. So some rules will be obeyed now, some rules will be highlighted here. But before starting, you should be familiar this one. What is voice? In grammar, the voice of a verb. You see the verb. किसी भी वो जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके एक एक पार्ट्स को जानेंगे, एक एक चीज को जानेंगे। हमें अब वो ट्रेडिशनल वे से हट जाना है जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं। What is verb? What is voice? What is active? What is passive? That's a very awkward things. That is outdated. We should have to be modified ourselves, updated ourselves. हमें अपडेशन में जाना है। हर दिन जैसे आप लोग देखते हैं रिसर्च जब होता है, नए नए चीजों का रिसर्च होता है, फिर उसके बाद नया रिसर्च होता है, तो हम अपडेशन होता है रिसर्च में। उसी तरह से हमारे स्टडीज में भी दैट शुड बी अपडेटेड अगेन एंड अगेन। और यहाँ अपडेशन क्या है कि हमको समझना है। और इफ यू गो थ्रू अ वेरी इजिली गोइंग मैनर, देन यू विल ग्रास्पली मोर एंड मोर थिंग्स, नो डाउट। Isn't it? Now comes this one. In grammar, the voice of a verb describes, यानी वर्णन करता है। किस बात का वर्णन करते हैं? The relationship between the action। एक वर्ड आ रहा है एक्शन। भाई एक्शन करने वाला कौन है? तो सब्जेक्ट ही होगा एक्शन करने वाला। That the verb expresses, यानी वर्ब ही डिस्क्राइब करता है एक रिलेशनशिप, यानी वॉइस जो किसी भी वर्ब का, क्योंकि वॉइस में वर्ब तो होना जरूरी है। अब वर्ब में भी कौन सा वर्ब? तो ट्रांजिटिव वर्ब। अब आप पूछेंगे भाई ट्रांजिटिव वर्ब सर क्यों बोले हैं, इंट्रांजिटिव क्यों नहीं बोले हैं? क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट होता नहीं है, और जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो फिर पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? जब तक ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो पैसिव वॉइस नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल। तो उसके लिए ट्रांजिटिव वर्ब का होना जरूरी है। यहां बोलते हैं द वॉइस ऑफ ए वर्ब, यह वर्ब हो गया ट्रांजिटिव वर्ब, वो डिस्क्राइब करता है यानी वर्णन करता है व्हाट द रिलेशनशिप, एक संबंध रिलेशन, एक रिलेशन को स्थापित करता है वो वर्ब। किसके बीच में? अब क्वेश्चन पूछ रहा हूं किसके बीच में भाई? द एक्शन दैट द वर्ब एक्सप्रेसेस एंड द पार्टिसिपेंट्स आइडेंटिफाइड बाय इट्स आर्गुमेंट्स, यानी जिसने कहा और उसने क्या किया, एक रिलेशनशिप उसका डेवलप। When the subject is the agent, जब यहां सब्जेक्ट, हम एग्जाम्पल के थ्रू यहां समझाएंगे यहां सब्जेक्ट एजेंट कैसे कहलाया, डोंट वरी अबाउट दिस। When the subject is the agent or doer, यानी सब्जेक्ट को हम करने वाला बोलते हैं, कर्ता, डूअर्स है। जब सब्जेक्ट कुछ करता है, जैसे हम यहां बोले आई ईट ए मैंगो, ये डूअर है, खाने का काम करता है कौन? आई। ये डूअर हो गया, वही बोलता है द सब्जेक्ट इज एजेंट और डूअर ऑफ द एक्शन। अगर एक्शन करने वाला जो एजेंट वो सब्जेक्ट हो, यहां पर द वर्ब इज इन द एक्टिव वॉइस, द वर्ब एक्टिव वॉइस, यानी ये जो हमने सेंटेंस लिखा ये एक्टिव वॉइस में होगी। एक समझाने के लिए हमने एक रफ फिगर दिया है, पहले आप समझ लेंगे, हम लोग इसको डिटेल में आएंगे। तो यहां क्या कहा कि सब्जेक्ट इज एन एजेंट और डूअर। यहां सब्जेक्ट मेन एजेंट हो गया, करने वाला। क्या एक्शन करता है? तो खाने का एक्शन करता है।
ईट खाना, यानी ये मेन वर्ब हो गया, एम बी, एम फॉर मेन, बी फॉर वर्ब। तो ये मेन वर्ब का काम करता है, सब्जेक्ट इज प्रेजेंट और डूअर ऑफ द एक्शन, द वर्ब इज इन द एक्टिव वॉइस। तब ये वर्ब जो है वो एक्टिव वॉइस है। तो ये वर्ब एक्टिव वॉइस में हो गया क्योंकि इसका साथ एक सब्जेक्ट है, एजेंट है, डूअर करने वाला, और यहाँ ऑब्जेक्ट भी है, दैट इज कॉल्ड द एक्टिव वॉइस। मैंने एक्टिव वॉइस को पहले ही कुछ बता दिया है ताकि इसको एक्टिव वॉइस को यहीं पर हमने डिफाइन कर दिया है। अब इसके बाद पैसिव वॉइस के बारे में बताएंगे। सो इन द व्यू ऑफ वॉइस, वर्ब्स आर ऑफ टू काइंड्स। अब वॉइस के दो प्रकार हैं, हर चीज के प्रकार होते हैं, इंसान में भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं, स्पेसीज में भी अनेक प्रकार के होते हैं, तो भाई ग्रामर भी अपने प्रकार का क्यों नहीं होगा। तो वॉइस भी बोलता है कि चलो भाई हमको भी प्रकार में बताइए, तो हमने कहा कि चलिए भाई आप दो तरह के हैं, ग्रामेरियंस ने इसको कैटेगराइज किया। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइसेस, दैट इज एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। इजंट इट? पैसिव वॉइस क्या है इसके बारे में हमने यहां लिखा है, ए फॉर्म ऑफ ए वर्ब। अब यही सी फॉर्म के वर्ब के बारे में कहा जा रहा है, इन विच द सब्जेक्ट अंडरगोज द एक्शन ऑफ द वर्ब। यानी इसमें जो एक्शन करता है, मतलब विच द सब्जेक्ट अंडरगोज द एक्शन, सब्जेक्ट ही एक्शन में चला जाता है ऑफ द वर्ब। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, या एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा, हम इसको पहले डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। क्या करता है? आई ईट अ मैंगो, एक सिंपल सेंटेंस है, जाहिर सी बात है ये एक्टिव वॉइस में है। क्यों? यहाँ पर सब्जेक्ट जो है, एजेंट जो है वो डूअर है, मेरे सब्जेक्ट आई जो है ये डूअर है, ठीक है। और वर्ब यहाँ क्या हो गया? ईट का, और इसका ये ट्रांजिटिव वर्ब है इसलिए इसका एक ऑब्जेक्ट भी है। अब इसमें पकड़ेंगे, अब हमको जैसे एक्टिव से हमको पैसिव बदलना हो, एक सिंपल वे में बता रहे, फिर आगे रूल्स और रेगुलेशन बताएंगे। जब इसको एक्टिव से हमको पैसिव बदलना हो, एक्टिव वॉइस है, सिंपल सेंटेंस से एक्टिव वॉइस हो गया, तो इसमें ऑब्जेक्ट भी है। अब इसको जैसे पैसिव वॉइस हमको बदलना होगा, क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस दिया हुआ है उसमें हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। ये आई क्या हो गया? ये सब्जेक्ट हो गया, ईट हो गया मेन वर्ब, और ये मैंगो हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। अब जब हमको पैसिव वॉइस में बदलना होगा तो क्या होगा? इसको हम क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, यानी ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा ये सब्जेक्ट हो जाएगा, और ये सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये हमने रफ कर दिया है, क्योंकि one point is to be noted here that in every passive voices there is no need to be written by। by को हमेशा लिखने की जरूरत नहीं है, या हो सकता है by के बाद जो सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में बदलना है वो बदलने की जरूरत ना पड़े, हमको यहीं तक सीमित हो जाए। वो सेंटेंस में हम आगे बताएंगे इस बात को, और भी डिटेल में यू विल absorb it, isn't it? So now come this point, I eat a mango, object is converted into subject. First, this is the rule. You just convert object into subject whenever it is converted into passive voice, and you will identify in which tense it has been written. यानी इस टेंस का ये वर्ब है, किस टेंस का ये सेंटेंस है हमको पता है, यानी ये सेंटेंस जो हमने लिखा ये किस टेंस में है पहले ये जानेंगे। हम ये प्रेजेंट टेंस में है, कैसे? इसको वर्ब को देखकर हम देखेंगे। जस्ट यू आस्क द क्वेश्चन, हाउ टू यू आइडेंटिफाई दिस वन इज इन प्रेजेंट टेंस और सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये कैसे है सर, आप कैसे कर रहे हैं? ये सिंपल प्रेजेंट में हमने इसके प्रीवियस क्लासेस में बताया था आपको ऑफलाइन में टेंस के बारे में, कि यहां पर जब प्रेजेंट टेंस कैसे कहलाता है, जैसे आई ईट अ मैंगो, ता ते ती होता है वर्ड के लास्ट में, और तब हम आइडेंटिफाई करते हैं कि वो
प्रेजेंट टेंस में है। तो ईट ए मैंगो, तो सबसे पहले हमने क्या किया, आइडेंटिफाई किया ये किस टेंस में है, तो भाई हम करेंगे प्रेजेंट टेंस में। और जैसे ही प्रेजेंट टेंस आएगा इसमें इज एम आर का यूज होगा प्रेजेंट टेंस में, ये रूल्स का है। तब हम करेंगे ए मैंगो। तो पहला हमारा काम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट कोई भी एक्टिव को पैसिव में बदलना हो, नंबर 1 रूल क्या होता है, हम उसके सब्जेक्ट को देखते हैं, सब्जेक्ट किधर है सेंटेंस में, इसके बाद हम उसके वर्ब को देखते हैं और इसके बाद ऑब्जेक्ट। सो अ मैंगो इज ईटेन बाय मी, हमने यहां लिखा। अब यहां पर पहले ये देख लिए, अब इसको जब पैसिव वॉइस में बदलना है क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे, क्या लिखेंगे, ए मैंगो। अब देख रहे हैं कि चूंकि ये एक मैंगो है और प्रेजेंट टेंस में, तो इसमें इज लगा देंगे। अगर यहां मैंगोज होते, सपोज या लिखते आई ए लॉट ऑफ मैंगोज, तब यहां क्या होता, ए लॉट ऑफ मैंगोज आर हो जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के हिसाब से ही इज एम आर यहां पर दिया जाएगा। हम आगे क्लास में और बताएंगे। और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, ये हमेशा याद रखना है पैसिव वॉइस में। व्हेनेवर यू आर गोइंग टू कन्वर्ट एनी मेन वर्ब इनटू द पैसिव वॉइस, that verb is converted into the V3 form. V3 means verb का थर्ड फॉर्म। उसके बाद by लगाना नहीं लगाना ये जरूरी भी नहीं है, ये कंडीशनल है। कहिए यहां पर हम लगा रहे इसलिए कि ऐसा सेंटेंस कि हम यहां लगा सकते, कुछ ऐसे सेंटेंसेस आएंगे जो सब्जेक्ट जो होंगे, मेन जो सब्जेक्ट होंगे एक्टिव वॉइस के, वो अंडरस्टूड होंगे यानी छिपे होंगे। तो यहां लिखिए मैंगो इज ईटेन बाय मी, ठीक है, ये सब्जेक्ट यहां ऑब्जेक्ट बन गया। तो आप इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। हम इसके आगे कुछ एग्जांपल्स देंगे ताकि आप यू कुड गेट फैमिलियर दिस वन, ओके। जस्ट